नमस्कार। रोज की तरह हम हैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में। आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले সিটি মন্টেসরি স্কুল 10 একর জমির ওপর নির্মিত। এই স্কুলটি আপনার সন্তানের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এখানে আপনার শিশু 100% স্মার্ট ক্লাস, কম্পিউটার ল্যাব, লাইব্রেরি, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, গণিত, জীববিজ্ঞানের জন্য আলাদা আলাদা ল্যাবের সুবিধা পাবে। এর সাথে একটি শিশু উদ্যানও রয়েছে, যেখানে আপনার বাচ্চাদের শারীরিক বিকাশের দিকে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। তাহলে আর দেরি কিসের? আজই অ্যাডমিশনের জন্য চলে আসুন সিটি মন্টেসরি স্কুল, বুধা পাইপলাইন রোড, কালাঝড়িয়া, বার্নপুর। যোগাযোগের নাম্বার 8001387524 অথবা 9434359937। Midwest Hospital and Medical Institute Private Limited, भगत सिंह मोड़, आसनसोल। आसनसोल के बीएनआर स्थित रविंद्र भवन में आज पश्चिम बंगाल पुलिस वेलफेयर कमेटी की दूसरी साधारण सभा का आयोजन किया गया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट वेलफेयर कमेटी इस मूल संस्था के अधीन एक कमेटी है। रविंद्र भवन में आज इनकी एक सभा हुई, जिसमें पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के हितों को लेकर चर्चा हुई। यहाँ मूल संस्था के कोलकाता से आए अधिकारियों ने आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अधिकारियों तथा कर्मचारियों से कुछ महत्वपूर्ण बातें साझा की। এই যিনি প্রোগ্রামটা করেছেন এবং আপনাদের এই উপস্থিতি এবং সকলকে আমি আমার অভিনন্দন জানাচ্ছি। আজকে আসতে দেরি হয়েছে, তার দুটো কারণ। আপনারা জানেন কলকাতা পুলিশের একজন সার্জেন্ট সাহেব মারা গেছেন, আর মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী কোন জায়গায় পৌঁছে দিয়েছেন আমাদের স্বাস্থ্য ব্যবস্থাটাকে। আজ আমাদের একজন পুলিশ কর্মচারী দুদিন ধরে চেষ্টা করে তার হার্ট প্রতিস্থাপন হচ্ছে আমাদের বিএম বিল্লায়। তার প্রত্যেকটা খরচ আমরা চেষ্টা করেছিলাম, সে হতাশ হয়ে গেছিল। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নজরে আনার পর তার প্রত্যেকটা খরচ ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট দিচ্ছে। এই রকম ভাবে পুলিশ কর্মচারীকে মানবিকভাবে সমর্থন করা বোধহয় এর আগে কোনোদিন হয়েছে বলে আমার মনে পড়ে না। তাই আপনারা প্রত্যেকে যারা এখানে আছেন, আগে কি ছিল এখন কি হয়েছে এগুলো বিচার করার দিন এসছে। কিছু কিছু লোক অনেক রকম ভাবে বিভিন্ন রকম ভাবে পুলিশকে অপমান করছে, পুলিশকে নানা জায়গায় নানা রকম কুকথা বলছে, এসবে কান দেবেন না। আমাদের বাহিনীর যারা প্রধান আছেন, যেমন এখানে নগরপাল আছেন, তার নেতৃত্বে আমরা সংঘবদ্ধ হয়ে ডিসিপ্লিন হয়েতে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে আসানসোল একটা জায়গা যেখানে কলকাতার পরই সমস্ত বর্ণ ধর্মের মানুষ এখানে বাস করে। সুতরাং আমাদের পুলিশ কর্মচারী ব্যবহার সমস্ত দিক থেকে ঠিক সেই রকম ভাবে চলতে হবে, সবাইকে সঙ্গে নিয়ে কাজ করতে হবে। কোনো রকম ভাবে আমাদের ডিসিপ্লিন নিয়ম শৃঙ্খলা নষ্ট করা চলবে না, নিজের স্বার্থের জন্য কোনো কাজ করা চলবে না। নিজের স্বার্থের জন্য যদি কেউ কোনো কাজ করেন এবং দোষী সাব্যস্ত হন, প্রশাসন যদি তাকে কোনো রকম ব্যবস্থা নেয়, আমি আজকের দিনে দাঁড়িয়ে বলছি পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ওয়েলফেয়ার বোর্ড তার পাশে দাঁড়াবে না। সুতরাং বাহিনীর নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে, এটা কোনো ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠন নয়। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এই সংগঠনটা করে দিয়েছিলেন, তার কারণ হচ্ছে আমরা যারা এখানে সামনে বসে আছি তারা যেমন এই সংগঠনের মেম্বার, আমাদের ফ্যামিলি তাদের ছেলেমেয়েরা এই সংগঠনের মেম্বার, যারা আমাদের সঙ্গে নেই, যারা শহীদ হয়ে গেছেন, যারা মারা গেছেন কর্মরত অবস্থায়, তাদের পরিবার তাদের ছেলেমেয়ে এই সংগঠনের মেম্বার, এবং আমাদের সাথে থেকে যারা অবসর গ্রহণ করেছেন তারা এবং তাদের ছেলেমেয়েরা এই সংগঠনের এই একটা বৃহত্তর পুলিশ ফ্যামিলি। সেই ফ্যামিলিকে দেখার জন্য এই সংগঠনটা তৈরি হয়েছে, কারো নিজস্ব স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কিন্তু এই সংগঠন তৈরি হয়নি। সুতরাং প্রত্যেকটা ইউনিটে, প্রত্যেকটা জায়গায় যে সমস্ত পুলিশ কর্মচারী আছেন তারা প্রত্যেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। আজকের এই ঐতিহাসিক দিন 26 আগস্ট, যে দিন 3 বছর আগে আমাদের স্টেট ওয়েলফেয়ার কমিটি গঠন হলো, এই দিনে আজকে আমাদের এই সাধারণ সভা আয়োজিত করার জন্য আমাদের যে এডিপিসি ওয়েলফেয়ার কমিটি আছে তাদেরকে আমি সাধুবাদ জানাই। এই রাজ্য ওয়েলফেয়ার কমিটি গত 3 বছর ধরে শ্রী শান্তনু সিনহা বিশ্বাস বিজিতৌসু রাওয়াত মহাশয়ের নেতৃত্বে কি কাজ করেছেন সেটা আপনারা ওনার থেকে শুনেছেন। অনেক কাজ হয়েছে এবং আমার আশা আছে আরো অনেক কাজ ভবিষ্যতে হবে।
আজ থেকে 15-20 বছর আগে পুলিশের যা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ছিল আপনারা নিজের চোখে দেখতে পাচ্ছেন লাস্ট 10-12 বছর ধরে ওর মধ্যে কত ইমপ্রুভমেন্ট হয়েছে। থানা হোক, ব্যারাক হোক, অন্য ইনফ্রাস্ট্রাকচার যে পুলিশ লাইনের হয় সেটা হোক, গাড়ি হোক, আপনারা নিজেরা এটাকে ফিল করছেন তার মধ্যে কত ইমপ্রুভমেন্ট এসছে। সেটা শুধু যার প্রেরণার জন্য এটা হয়েছে সেটা হচ্ছেন আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওনার কাছে যখনই আমরা কোনো দাবি নিয়ে যাই, স্পেশালি আমাদের যারা সহকর্মী বৃন্দ আছে, যে আমার পুলিশ পরিবার আছে, তাদের যে কোনো দাবি হোক না কেন উনি ভালো করে শুনেন এবং যতটুকু ওনার সামর্থ্য অর্থনৈতিক দিক দিয়ে দেখে উনি ওটাকে করার চেষ্টা করেছেন। এবং অনেক দাবি আমাদের যেটা ছিল পুলিশের পরিবারের যে দাবি ছিল সেটা পূরণ হয়েছে। আমাদের পরিবার একটা পুলিশ পরিবার, এই ওয়েলফেয়ার কমিটি যে গঠন হলো ওর মেন যে কারণটা ছিল, আগে অনেক অ্যাসোসিয়েশন ছিল, ইউনিয়ন ছিল, তার অ্যাকচুয়াল গ্রাউন্ড লেভেলে কি কি দাবি আছে সেটা হয়তো ওর মারফতে আমাদের কাছে আসতো না। এখন যেটা শান্তনু বাবু বললেন, এটা কোনো ট্রেড ইউনিয়ন নেই, এটা হচ্ছে একটা ওয়েলফেয়ার বোর্ড। আপনাদের যে ওয়েলফেয়ার যে কাজ আছে হয়তো আমাদের কাছে সরাসরি অনেকবার আসতে পারে না, তো এই ওয়েলফেয়ার বোর্ড বা ওয়েলফেয়ার কমিটি যে আছে সেটা একটা সেতুর কাজ করে, একটা ব্রিজের কাজ করে। আপনাদের যে সমস্যা আছে, যা যা প্রবলেম আছে, যা দাবি দেওয়া আছে, হয়তো ডাইরেক্টলি আমরা অনেকবার জানতে পারি না, সেটা ওই ওয়েলফেয়ার কমিটি বা ওয়েলফেয়ার বোর্ড দিয়ে আমাদের কাছে আসে। আজকে যে আপনাদের এখানে যে এই বার্ষিক সাধারণ সভাটা হলো, মূলত কি কি বিষয় নিয়ে একটু আলোচনা? দেখুন, আমরা যারা পুলিশকর্মী এবং সহায়ক পুলিশকর্মী তাদেরই কিন্তু মূলত আজকে সভা ছিল। আজকের দিনটা আমাদের কাছে সত্যি সত্যি কিন্তু একটা ঐতিহাসিক দিন। 2020 সালের ঠিক আজকের দিনে আমাদের রাজ্য সরকার, আমাদের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্টেট ওয়েলফেয়ার কমিটি গঠন করেছিলেন। ক্যালকাটা পুলিশের জন্য ক্যালকাটা পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটি, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের জন্য পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটি। এ ধরনের সভা আমাদের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন সময়ে হয়। আসানসোলে একটা বিশেষ কারণে আমরা এখানে করলাম, কারণ এখানকার পুলিশকর্মীর সংখ্যা প্রচুর এবং এখানকার পুলিশকর্মীরা বেশ কিছুদিন ধরে তাদের যে বিভিন্ন অভাব অভিযোগ সেগুলো তুলে ধরছিল, সেগুলোকে আজকে বিস্তারিতভাবে আমরা আলোচনা করলাম, সেখান থেকে সংগ্রহ করলাম এবং ঠিক জায়গায় আমরা প্রেস করব যাতে আমাদের নিচুতলার পুলিশকর্মী এবং সহযোগী পুলিশকর্মীর সেই দাবি দেওয়াগুলো একটা একটা করে আদায় হয়। সেই জন্যই কিন্তু আজকের এই সভা। এখানে আমরা যেটা দেখতে পেলাম যে স্বাস্থ্যসাথী থেকে শুরু করে বিভিন্ন প্রকল্প, আর কি কি প্রকল্প আপনাদের পাইপলাইনে রয়েছে? আমরা সিভিক ভলেন্টিয়ারদের ম্যাক্সিমাম কিন্তু বা ভিলেজ পুলিশ তারা আজকে আমাদের কিন্তু অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এদেরকে বাদ দিয়ে কিন্তু আমাদের পুলিশ বাহিনীর কথা আমরা কিন্তু ভাবতে পারি না। আপনারা শুনলেন, আমরা বললাম, আমাদের কোঅর্ডিনেটর বললেন যে সিভিক ভলেন্টিয়াররা এতটাই আমাদের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত, সিভিক ভলেন্টিয়ার ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের ট্রাফিক ব্যবস্থা কিন্তু আজকে ভাবা যায় না। তো এরকম একটা গুরুত্বপূর্ণ ডিপার্টমেন্টের সঙ্গে আছে, তাদের সমস্যাও আছে, তাদের সংখ্যাটা অনেক বেশি। যেমন তাদের ট্রিটমেন্টের ব্যবস্থা হয়েছে, তাদের জন্য স্বাস্থ্যসাথী হয়েছে, আগে তাদের ছুটি ছাড়া ছিল না, পুলিশ কর্মীদের সমান ছুটি ছাড়া তাদের জন্য ব্যবস্থা হয়েছে, তাদের মাতৃত্বকালীন ছুটির ব্যবস্থা হয়েছে। সিভিক ভলেন্টিয়াররা মারা গেলে দেন অ্যান্ড দেয়ার তারা যাতে তার পরিবারের লোক চাকরি পায় এবং 3 লক্ষ টাকা পায় তার ব্যবস্থা হয়েছে। এরকম একটা একটা করে হচ্ছে এবং কিছু কিছু আছে যেগুলোর সম্বন্ধে আমরা সরকারের কাছে, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে পাঠিয়েছি। আমরা আশা করছি সেগুলো ধীরে ধীরে একটা একটা করে কিন্তু মিটে যাবে। আপনার নাম? বিজিতাশ্ব রাউত, কনভেনার, ওয়েস্ট বেঙ্গল পুলিশ ওয়েলফেয়ার কমিটি। ঠিক আছে। आज आसनसोल नगर निगम के आलोचना भवन में रंग नामक एक किताब का विमोचन किया गया। यह इस किताब का 100वां संस्करण है। इस बारे में जानकारी देते हुए इस किताब में अतिथि संपादक तथा रानीगंज टीडीपी कॉलेज की शिक्षिका साबरा हिना खातून ने कहा कि धनबाद से निकलने वाली किताब रंग का आज 100वां संस्करण का विमोचन हुआ। पहले के 87 संस्करण एडिटर शान भारती के तत्वावधान में निकले थे। बाकी के 13 संस्करण डॉक्टर इकबाल हुसैन द्वारा निकाले गए। इस संस्करण में पूरे विश्व में जहाँ जहाँ उर्दू भाषा का प्रयोग होता है
वहाँ पर महिलाओं ने इस भाषा के विकास में क्या योगदान दिया है उस पर प्रकाश डाला गया है। हमारे उसी तरफ चलते हैं। मुझे अल्लामा इकबाल का वो मिसरा जहन में आ रहा है कि वजूद जन्स है तस्वीर कायनात है, नज़ाम हाथ का कोई भी गोशन औरत के मैं कहूँ कि उनके जिक्र के बगैर खाली है। ये मर्द जन लाजिम व मंजूम है, एक सिक्के के दो रुख हैं। कभी खवातीन किरदारों की हद तक महदूद थी, लेकिन सच्चाई ये है कि अब खवातीन किरदार तख्लीक कर रही है। उर्दू अदब का कोई भी गोशा हो, चाहे वो अफसानों की दुनिया हो, नावल की दुनिया हो, मज़ामीन के मामलात हो, तहकीकी और तनकीदी शोबा हो, शायरी हो, इन तमाम की तमाम शोबे में यकीनी तौर पे हमारे खवातीन का भरपूर हिस्सा है, भरपूर नुमाइंदगी हो रही है। यकीन जानिए कि आप आसनसोल को देखें और रानीगंज को देखें, मरी बंगाल कलकत्ते को देखें, या जो भी इलाके हैं जहाँ भी उर्दू बोली पढ़ी लिखी और समझी जा रही है, वहाँ पे हमारे मर्द जो भी नस्ल निगार हैं, शोरा हैं, उनकी बिल्कुल शाना बशाना चलती हुई नजर आ रही है हमारे खवातीन भी। मैंने कहा कि ऐसा है जनाब, जब सेंचुरी मारने की जरूरत पड़ती है तो कैप्टन को बुलाना ही पड़ता है। तो ये तो मैंने मतलब हंसने हंसाने के लिए कह दिया था, लेकिन उनका सवाल भी अच्छा था कि अभी क्यों खवातीन अदब नंबर की जरूरत पड़ी। तो कहा जाता है, मतलब इन्होंने ऐसा सोचा, इस सोच के लिए इनको सलाम। 87 शुमारे तक मरहूम शान भारती ने इसको निकाला। 87 के बाद, उनके इंतकाल के बाद, इसका बार डॉक्टर इकबाल साहब के कांधों पर आया। 13 शुमारे, कामयाब 13 शुमारे इनकी अदालत में निकले। डॉक्टर इकबाल हुसैन साहब एक मुहक्किक हैं, झारखंड के कलमकारों पर, अब झारखंड का एरिया कितना बड़ा है, उन कलमकारों को इन्होंने ढूंढ ढूंढ कर निकाला और एक तहकीकी किताब लिखी। झारखंड के नामों अदीब शुअरा या कुछ और नाम है, लेकिन वहां के लोग सुखनवरा ने झारखंड, तो इन्होंने लिखा। अब इनके बारे में भी जहां तक मुझे मालूम है, बातों के दरमियान इस दौरान बहुत कुछ पता चला कि इनके वालिद बड़े अदब नवाज थे। ऐसे अदब नवाज कि वो हर साल पाबंदी से जलसा मुशायरा सब कुछ करवाते थे और अपनी जेब से खर्च करते थे। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं, अदब नवाज शख्सियतें। पैसे की कमी नहीं है किसी के पास, दिल की कमी है, अदब नवाजी की कमी है। बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों से बहुत बेहतर हैं, लेकिन अल्लाह ने दिल वैसा नहीं दिया है। तो ये ऐसे घराने के चश्म चिराग हैं कि इनके वालिद का ये मामला रहा है। आज ये अगर आजकल जो लोग भी रिसाला निकालते हैं, सभी लोग समझते हैं कि घाटे का सौदा है, ये मुनाफा कुछ नहीं है। उर्दू के जो रीडर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। ऐसे में रिसाला निकालना अपने आप में जोखिम भरा काम है। इकबाल साहब रोजाना एक तो रिसाला निकालते हैं, ऊपर से उसको डिस्पैच करने में घंटों पोस्ट ऑफिस में लाइन लगा के खड़े रहते हैं और ये काम भी करते हैं। उसके बावजूद लोग उन्हें पैसे नहीं देते, ऐसा भी मामला है। इतने गयूर वाक़े हुए हैं कि ये बार बार मांगते भी नहीं है, कहते भी नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं हमारे दरमियान, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उसके बावजूद सिर्फ और सिर्फ उर्दू की मोहब्बत में अपना काम किए जा रहे हैं, अपने रास्ते पे लगे हुए हैं, बढ़े चले जा रहे हैं। यहाँ जितने लोग बैठे हैं यकीनन सभी उर्दू की मोहब्बत में यहाँ तशरीफ लाए हैं। मैं अपनी जानिब से आप सबों का फर्दन फर्दन खैर मकदम करती हूँ, सबों का इस्तकबाल करती हूँ। यहाँ जितने लोग हैं जिन्होंने नाज शरीफ खालिक अदीब साहब ने पढ़ी, गज़ल हमारे गुलाम गौस साहब ने पढ़ी, और हमारे हफीज़ साहब ने, और अभी फैज़ान को भी हम लोगों को सुनना है, और बहुत सारे मामलात में फैज़ान ने भी साथ दिया और दीगर लोगों ने इसको सजाने और संवारने में, और सबकी दुआएं मिली। आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। हमारे उस्ताद मोहतरम उतनी दूर से तशरीफ लाए, इस परेशानी में, बीमारी में, मेरे कहने पर, मेरी ख्वाहिश की तकमील के लिए, मेरी दरख्वास्त पर उनका भी शुक्रिया। जो हजरात झारखंड, धनबाद, झरिया वगैरह से तशरीफ लाए उनका भी शुक्रिया। और इस महफिल में जो लोग आए हैं, चाहे वो आसनसोल के हों, कुल्टी के। इनके बाद मेहमान मुदीरा और मुझे दिखने का पर कुछ पेश कर रही हैं।
मोमेंटो पेश कर रही है। और देखिए एक नौशा दूसरे नौशे को ये हार पहना रहे हैं जनाब सामने साहब। धुन है कि मैं रात को ढलता देखूं, अपनी नाखों से सूरज को निकलता देखूं। ये शेर मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब वक़ार कादरी का है। शायद ये शेर उन्होंने इसी वक्त और इसी रिसाले के लिए कहा था। समाई रंग के इशाद पिछले 30 सालों से मुश्तरका बिहार और झारखंड की सरजमीन धनबाद से आज तक तवातुर के साथ जारी है। शान भारती ने अदब के जिस पौधे की आबियारी 27वें शुमारे तक की और सज्र सायादार बनाया, आज भी हरे भरे दरख्त की शक्ल में आपके सामने है। अपने 100वें शुमारे तक रंग ने कई नसीबो फराज देखे। रंग के लिए शान भारती की वफात किसी सानहा से कम न थी। मुबारकबाद के मुस्तहक है रंग के कारीन और करम फरमा, जिन्होंने मेरे कांधों पर इसकी जिम्मेदारी देकर इस अदबी विरासत की हिफाजत की। इन हजरात की हौसला अफजाई और कदम ब कदम दामे दरमे रुखने ताउन ने मुझ नाचीज से काम लिया, वरना मुझ में न इतनी सकत थी और न ही हौसला अफजाई। इन अहबाब में धनबाद से एक रिसाला निकलता है, तकरीबन 30 वर्षों से निकल रहा है, जिसका नाम है रंग। और इसे पहले चलाया करते थे, उसकी अदारत करते थे मोहतरम शान भारती साहब मरहूम, जिन्होंने इसके 87 शुमारे 87 शुमारे इसके रिलीज़ किए, निकाले। और उसके बाद से 13 शुमारे और आए जो डॉक्टर इकबाल हुसैन की सरपरस्ती में उनकी अदारत में आए। तो ये जो 100वां शुमारा है, 100 एडिशन जिसको कहते हैं, तो ये 100वां शुमारा औरतों के नाम है। आलमी ख़वातीन अदब नंबर के नाम से ये आया है। मतलब कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू लिखी पढ़ी और बोली जाती है, वहाँ औरतों ने जो काम किया है, शॉर्ट स्टोरीज़ या अफसाने लिखे हैं और शायरी की है, ठीक है, तो उन सब की चीज़ें यहाँ पर इस किताब में महफूज की गई है। बहुत ही ज़ख़ीम नंबर है, 512 सफ़ात का। तो उसी का आज इनागोरेशन था, उसी को रिलीज़ किया गया, उसका इजरा था आज यहाँ पे। और हम लोगों ने ये महफिल जो सजाई है वो कारवाने अदब जो रानीगंज का अदारा है, जिसके सदर सैफुल इस्लाम सैफ साहब हैं। तो हम लोगों ने कारवाने अदब की तरफ से इस महफिल को सजाया है। और इसमें हमारे साथ जो शरीक है जो अदारा, वो है अहले कलम, जो झरिया धनबाद झारखंड का अदारा है, वो भी इसमें मुश्तरका तौर पर उसने अपनी महफिल सजाई है। और उसी में इस किताब को, इस रिसाले का इजरा किया गया। आज उसी के ताल्लुक से ये महफिल सजाई गई। जी मेरा नाम साबिरा खातून है ना, मैं DDB कॉलेज में पढ़ाती हूँ, शायरा अदीबा। और इस मैगज़ीन की मेहमान मुदीरा मैं ही हूँ, गेस्ट एडिटर। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। हिलव्यू हॉस्पिटल, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. हिलव्यू हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज़ों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833
9046007834। हर इंसान का सपना होता है एक अदद घर, जहां वो अपने अपनों के साथ चैन से रह सकता है। लेकिन ईंट पत्थर के एक मकान को घर बनाना हो तो घर के कुछ ऐसे सामान की ज़रूरत होती है जिससे इंसान अपने सपनों के आशियाने में चैन से रह सके। होमलैंड फर्नीचर आपके इन्हीं ज़रूरतों को बेहद वाजिब कीमतों में पूरा करता है। होमलैंड फर्नीचर में आपको मिल जाएंगे सोफ़ा सेट, सोफ़ा कम बेड, आलीशान बेडरूम पैकेज, डाइनिंग सेट, विभिन्न तरह के खूबसूरत आईने, ड्रेसिंग टेबल सेट के अलावा और भी शानदार और ख़ूबसूरत फर्नीचर जो आपके घर की खूबसूरती को चार चांद लगाते हैं। होमलैंड फर्नीचर में आपको इजी फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी। होमलैंड फर्नीचर, ए हाउस ऑफ प्रीमियम प्रोडक्ट्स एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस। तो फिर देर किस बात की, आज ही चले आइए होमलैंड फर्नीचर और अपने सपनों के आशियाने को लगाइए चार चांद। होमलैंड फर्नीचर, हमारा पता अंबा टावर, फर्स्ट फ्लोर, उषा ग्राम, एयरटेल ऑफिस के निकट। कॉन्टैक्ट नंबर 9635671674। होमलैंड फर्नीचर। अरसलान बिरयानी, बस्तिन बाजार, आसनसोल। मोबाइल नंबर 9434195959 या 7001959233। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। लजीज खाने के शौकीन लोगों के लिए अच्छी खबर। आसनसोल के एसबी गुराई रोड स्थित सुकांतो मैदान के सामने खुल गया है द जायका फास्ट फूड रेस्टोरेंट। आसनसोल के चांदमारी इलाके में स्थित राइफल क्लब में आज से 7वें ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 की शुरुआत हुई। इसमें बंगाल के अलावा उड़ीसा, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, अंडमान निकोबार से तकरीबन 500 निशानेबाज भाग ले रहे हैं। ये प्रतियोगिता 29 तारीख तक चलेगी। यहाँ पर राइफल और पिस्तौल विभागों में विभिन्न स्पर्धाओं में प्रतियोगिताएं होंगी। এটা হচ্ছে আমাদের 7th ইস্ট জোন শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপ, যেটা কিনা আমাদের ন্যাশনাল কম্পিটিশনের আগে একটা প্রি ন্যাশনাল কম্পিটিশন হয়। তো এখান থেকে কোয়ালিফিকেশন স্কোর পেলে তারা ন্যাশনাল কম্পিটিশনে পার্টিসিপেট করতে পারবে। তো এই কম্পিটিশনটা সেটাই, এটা গোটা ভারতবর্ষ জুড়ে বিভিন্ন জোনে ভাগ করা হয়েছে, বিভিন্ন রাজ্যগুলোকে। তো আমাদের এখানে এই যে ইস্ট জোনে রয়েছে আপনার ওয়েস্ট বেঙ্গল, বিহার, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড়, আন্দামান আর নিকোবর আইল্যান্ডস। এখান থেকে শুটাররা এখানে পার্টিসিপেট করছেন। এখানে প্রায় 500 শুটার এবছর পার্টিসিপেট করছেন। শুটার সংখ্যা আর একটু বাড়তো, কিন্তু কয়েকটা স্টেট একটু দেরিতে স্টেট চ্যাম্পিয়নশিপ করায় তাদের সমস্ত শুটার এসে উঠতে পারেনি। আমরা দেখছি যে আরও কিছু শুটার বাড়তে পারে। এখনো পর্যন্ত 500 মতো শুটার এন্ট্রি নিয়েছে। এই কম্পিটিশন আজ থেকে শুরু হলো, চলবে 29 তারিখ পর্যন্ত। আমার নাম দেবকুমার সামন্ত। ये हमारा आज से 7th ईस्ट जोन शूटिंग चैंपियनशिप 2023 का राइफल और पिस्टल इवेंट्स में प्रारंभ हो गया है आसनसोल राइफल क्लब में। इसमें करीब 500 शूटर विभिन्न जो ईस्ट जोन के स्टेट्स हैं, जो कि हमारा डिमार्केटेड स्टेट ईस्ट जोन में आता है, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वहाँ के इन प्रांतों के शूटर आए हुए हैं। ये कंपटीशन में वही लोग भाग ले पाते हैं जो अपने अपने स्टेट के शूटिंग चैंपियनशिप में जो प्रतियोगिता में मिनिमम क्वालिफाइंग स्कोर करके प्री नेशनल इवेंट ये है, इसमें जिन्होंने क्वालिफाई किया है। और ये इवेंट जो है आज हमारा आरंभ होने जा रहा है और फॉर्मल इनॉग्रेशन होने जा रहा है। और ये 29 तारीख तक इसमें मैचेस चलेंगी। राइफ़ल में, पिस्टल में, एयर में, राइफ़ल में आपका 2-2 में, प्रोन में, 3P में और 25 मीटर्स में पिस्टल में, सेंटर फायर में, स्टैंडर्ड पिस्टल में। और 29 तारीख को हम लोग का पुरस्कार वितरण होगा शाम को 5 बजे। ये हम लोग का बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट
एक तरह का इवेंट है और हम उम्मीद करते हैं कि जो लोग बाहर प्रांतों से आए हैं इस प्रतियोगिता में भाग लेकर के इसका लाभ उठा पाएंगे। मैं हूं वीरेंद्र कुमार ढल, प्रेसिडेंट वेस्ट बंगाल राइफल एसोसिएशन। अगले साल लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, इसे लेकर हर एक राजनीतिक दल की तरफ से अभी से तैयारियां की जा रही हैं। इसी क्रम में ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से पश्चिम बर्दमान अध्यक्ष दानिश अजीज़ के नेतृत्व में बीएनआर स्थित कॉफ़ी हाउस में एक समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में पश्चिम बर्दमान ज़िले में पार्टी अगले चुनाव में किस तरह से आगे बढ़ेगी तथा चुनावी रणनीति क्या होगी, इस पर सघन विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर पार्टी के ज़िला उपाध्यक्ष एजाज़ अहमद, आसनसोल उत्तर के कन्वीनर अनवर हुसैन, उपाध्यक्ष सरवर इफ्तिखार आलम, ज़िले के वर्किंग प्रेसिडेंट आतिफ मलिक सहित तमाम पदाधिकारी। देखिए, आज हम लोग जितने भी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिला पश्चिम बर्दमान के डेलीगेट्स हैं, हम लोग बैठे थे। हमारे सदर भी मौजूद थे, अभी अपने किसी काम से मसरूफियत से निकल गए हैं। लेकिन बात जो है जो मौजूद था आज का कि रेल पर जो आज तक बदहाली का शिकार गया पड़ा हुआ है और गरू नदी का जो मामला है कि हम लोगों ने नहनुमा वाल बनाने के लिए बोला था, मुतालबा किया था कॉरपोरेशन से, जो अब तक नहीं बन पाई है। तो आज हम लोगों का ये आपसी बातचीत हुआ कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग काम करेंगे। अगर हुकूमत काम करके देती है तो ठीक है इंशाल्लाह, वरना ज़मीन में उतर के काम करना होगा इंशाल्लाह। बस RCH हॉस्पिटल का मामला है, HQR स्कूल का मामला है, मतलब टोटल की टोटल बदहाली का मामला सामने जो है, इसके मुतालिक आज हम लोग बैठे थे इंशाल्लाह। नेक्स्ट आप लोग क्या टॉपिक करेंगे? अभी हम लोग आपसी जो बातचीत हुई है कि हम लोगों ने मशवरा में तय पाया है कि हम लोग मेयर साहब से मिलते हैं। आखिरी बार मेयर साहब से मिलकर हम लोग बात करते हैं कि मेयर साहब क्या इसके एवज में हम लोगों को बतलाते हैं किस तरह से काम कर पाएगी हुकूमत। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट www.asansoltimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के जरिए और हमारे पोर्टल के जरिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल पौरसभा শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना, थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ লাগাবো और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।